Assalamu alaikum. I am Adnan Shoaib, faculty member at ComSet Institute of Information Technology, and today is our lecture number 31 regarding the course issues in accounting practices. And today's our topic is the incremental analysis and the capital budgeting. In the last lecture, we have studied regarding the cost, volume, and profit relationship, that how these relationships exist, in which we have studied the break-even analysis and the desired target income analysis. We have studied all these things in that lecture. Now we are going to study what the capital budgeting and how the incremental analysis works. That is going to study, we are going to study today. So starting with the topic, first to go for the learning objectives. Indicate the steps in management decision making process. क्या steps involve होते हैं management decision making process में? Describe the concept of incremental analysis. Identify the relevant cost in accepting an order at specific price. That is important one. Identify the relevant cost of make or buy decision. That is also important. Give the decision rule for whether to sell or process the material. These all are the decision making tools now that we are going to see. Then identify the factors to consider in retaining and replacement of equipment. किस तरह उसकी replacement या retaining का आपने decision करना है. Explain the relevant factors in whether to eliminate an unprofitable segments. तो वो भी there है. Determine which product to make and sell and resources are limited. Contrast annual rate of return and cash payback in capital budgeting. के contrast करें annual rate of return कितना है, cash payback in capital budgeting कितनी है, वो भी record करें. Distinguish between the net present value and internal rate of return method. यानी ये हमने distinguish करना है between internal rate of return, net present value and internal rate of return. That we are going to calculate over here. Now there are certain preambles. An important purpose of management accounting is to provide manager with the relevant information for decision making. काम क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कि नेसेसरी डिसीजन दे, नेसेसरी इंफॉर्मेशन दे ताकि वो डिसीजन हो सके. कंसिडर्स यूजेस ऑफ इंक्रीमेंटल एनालिसिस एंड कैपिटल बजटिंग. क्या यूजेस ऑफ इंक्रीमेंटल एनालिसिस और कैपिटल बजटिंग के यूजेस जो है वो क्लियर होने चाहिए इन मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के, जो भी मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के जो डिसीजंस आते हैं, यानी जो भी उनमें रिक्वायर्ड कैपिटल बजटिंग के डिसीजंस आने होते हैं. These are the topics that we are going to cover in the lecture. Incremental analysis में आता है management decision making process, accepting special price order, make or buy, sell process, further retain or replace, eliminate unprofitable segments or allocate limited resources. That we are going to study today. Then capital budgeting evaluation, annual rate of return, cash payback, discounted cash flows, NPV and IRR. That is the total topic that we are going to cover today. And moreover, that is the last topic of our this course. As in the next lecture would be our last lecture of this course, that is the lecture number 32, in which we are going to do a course review कि हमने कोर्स में क्या क्या पढ़ा है, कुछ सम इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम लोग रिवाइज भी करेंगे, रिवर्ट भी करेंगे और सारे को हम लोग कंप्लीट भी करेंगे कि कहाँ से किधर से लाइक कौन सी चीज किधर से एक्यूमुलेट हो रही है. कोई चीज अगर हम आई फील नीड कि आपको एक दफा दोबारा बतानी चाहिए, दोबारा समझानी चाहिए, तो मैं उसे एक दफा दोबारा रिपीट जरूर करूंगा. तो नेक्स्ट लेक्चर वुड बी आवर कोर्स रिव्यू. दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर course for the course, and the 32nd lecture would be the review of a course. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के. इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट फंक्शंस डज नॉट अलाउ फॉलो अ सेट पैटर्न. डिसीजन वेरी इन स्कोप, अर्जेंसी एंड इंपॉर्टेंस. लेकिन डिसीजन मेकिंग के सर्टेन स्टेप्स होते हैं. दीज आर द 4 स्टेप्स. आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. सबसे पहला काम क्या करना है, हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है. डिटरमिन एंड इवैल्यूएट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, कि उस चीज को सॉल्व करने के लिए क्या क्या एक्शन हो सकते हैं. मेक अ डिसीजन कि हाँ जी दैट वन इज बेटर, and review the results after decisions. That is the basic thing जो involve होती है decision making process में. These are the 4 steps that are involved in decision making process. Then management decision making process consider both financial and non financial information. जब भी decision making process होगा तो हमने दोनों information को लेके चलना है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या क्या चीजें इंक्लूड करती हैं, इंक्लूड्स रेवेन्यूज एंड कॉस्ट एज वेल एज देयर इफेक्ट ऑन द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, कि कितना रेवेन्यू एंड कॉस्ट है, एज वेल एज देयर इफेक्ट ऑन ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, के ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे इसका क्या इंपैक्ट आता है. नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स इफेक्ट ऑन एम्प्लॉइज टर्नओवर, द एनवायरमेंट एंड द ओवरऑल कंपनी इमेज, यानी कि ओवरऑल इफेक्ट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर, एनवायरमेंट और कंपनी इमेज के बारे में जो इंफॉर्मेशन है उसे कहते हैं दैट इज
known as our financial information, non-financial information. So that means we have to include both financial information and also a non-financial information. Then there is a management decision making process. Incremental analysis वाला approach आती है सबसे पहले कि decision making process के लिए हम incremental analysis approach use करते हैं. Decisions involve a choice among alternative course or alternative actions, यानी कि decision involves a choice among alternative actions कि जितने भी alternative actions हैं उनमें से हमने choice करनी है. Financial data relevant to decisions are the data vary in the future among alternatives, यानी financial data relevant to our decisions कि जो भी फाइनेंशियल डाटा है रेलेवेंट टू आवर डिसीजंस, किससे रेलेवेंट है? डिसीजन से. आर द डाटा, वो डाटा दैट वेरी इन फ्यूचर अमंग अल्टरनेटिव्स, कि वो डाटा जो फ्यूचर में अल्टरनेटिव्स में वेरी कर जाए. बोथ कॉस्ट एंड रेवेन्यू में वेरी और ओनली रेवेन्यू वेरी और ओनली कॉस्ट वेरी. तो यही कह रहा है कि दैट फाइनेंशियल डाटा रेलेवेंट टू अ डिसीजन आर अ डाटा दैट वेरी इन फ्यूचर अमंग अल्टरनेटिव, यानी कि जो भी जिसका जो आपके पास डाटा है जिसमें फ्यूचर में among alternative उसकी variations आ रही हैं. So that means all cost may vary. Then further management decision making process, that is incremental analysis process used to identify a financial data that change under alternative course of action. क्या incremental analysis में क्या होता है? Process used to identify financial data that changes under alternative course of action, यानी कि जो change हो जाए under alternative course of action में. यानी एक चीज suppose ऐसी है तो दूसरी चीज ऐसी होगी. Suppose एक चीज में आपको profit इतना हो रहा है और दूसरी चीज में profit इतना हो रहा है, तो the difference is known as incremental. That is known as incremental analysis. Identify the probable effect of decisions on future earning, कि जो भी decision होगा उससे future earning का उसे सामने show करेंगे. Also called differential analysis. क्या कहते हैं उसे हम? Differential analysis, because it focus on difference. Because यहाँ पे हम देखें ना, इन दोनों profit के बीच में difference निकाल रहा हूँ ना, तो that is also known as differential analysis. इसे हम differential analysis भी कहते हैं. इसे हम डिफरेंशियल एनालिसिस भी कहते हैं. और वो डिफरेंशियल एनालिसिस नजर यू कैन से दैट इट इज अ पार्ट ऑफ इंक्रीमेंटल एनालिसिस. बेसिक एग्जांपल देखें यहाँ पे. अल्टरनेटिव ए एंड बी, रेवेन्यू 125, बी 110, डिक्रीज कितना है? 15,000 का. कॉस्ट 180,000, 20,000 की कॉस्ट डिक्रीज है. नेट इनकम में कितना डिफरेंस है? 5,000 का इंपैक्ट है. कंपैरिजन ऑफ अल्टरनेटिव A, B with A. Incremental revenue of 50,000 is less under B. Incremental cost saving 20,000 है. Alternative B produces 5,000 more net income. यानी B कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 5,000 more net income produce कर रहा है. Means to say there is an increase of 5,000 net income. So that is how the incremental analysis works. कि इस तरह incremental analysis work करता है. Now, how incremental analysis works? Sometimes involves changes that seems contrary to intuitions. कि sometimes क्या होता है? ये involves changes, कोई ऐसे changes include करता है जो आपके experience के साथ match नहीं कर रहे होते. Intuition means experience, कि आपका experience उसका साथ नहीं दे रहा, और sometimes वही changes उसके अंदर involve होते हैं. Variable cost sometimes do not change under alternatives. Variable cost कई दफा उन दोनों alternative में change नहीं होती. Fixed cost sometimes change between alternative, कि fixed cost उन alternatives के बीच में change होती है. Incremental analysis not the same as CVP analysis. Remember that CVP analysis और incremental analysis में difference exist करता है. CVP analysis is something different and incremental analysis is something different. दोनों में difference exist करता है. So that is what the whole how the incremental analysis works. Here is a review question, so you have a much clear idea about the overall incremental analysis. Incremental analysis is the process of identifying financial data that do not change under alternative course of action, change under alternative course of action, or mixed under alternative course of action, none of the above. Then the answer would be B, because वही आपको clear definition बता रहा है कि that change in the alternative course of action is the actual measurement of the whole review question. इसी को कहते हैं कि that is the measurement, यही तो measurement है. तो that is change under alternative course of action. Now the types of incremental analysis. Incremental analysis की क्या क्या types होते हैं? First है accept an order at special price. तो यहाँ पे भी आप देखेंगे हाँ जी ठीक है मैं special price ले तो रहा हूँ
तो क्या मुझे वाकई में इससे फायदा भी हो रहा है, नहीं हो रहा? कोई डिफरेंस आ रहा है अगर एग्जिस्टिंग प्राइस और स्पेशल प्राइस का मैं अगर कंपैरिजन करूं? मेक और बाय, वेदर आई शुड मेक व्हाट इज इंक्रीमेंटल और बाय, इन दोनों में क्या क्या चीजें इंक्रीमेंटल है वो अलग अलग कर ली। सेल और प्रोसेस, अब यहां पे भी देखिए हर एक में दो ऑप्शंस अवेलेबल है, या तो सेल करूं या प्रोसेस करूं, इंक्रीमेंटल एनालिसिस करना है, या तो रिटेन करूं किसी चीज को या रिप्लेस करूं। अगेन वी आर गोइंग फॉर द इंक्रीमेंटल एनालिसिस। एलिमिनेट द अनप्रॉफिटेबल सेगमेंट, अगर वो सेगमेंट रहे तब क्या हमारे पास सेगमेंट एनालिसिस आना है, और अगर उसे हम लोग एलिमिनेट कर दें, उसे हम एलिमिनेट कर दें तो तब हमारे पास क्या होना है? allocate limited resources को allocation. So these are all the types of incremental analysis. इन सारों को हम कहते हैं कि that is what we known as incremental analysis. इसी को तो हम incremental analysis कहते हैं कि ये incremental analysis हमें further बताता है कि where we are going to lie और किधर पे हम लोगों ने actual में रहना है। फर्स्ट, एक्सेप्ट एन ऑर्डर एट स्पेशल प्राइस, कि कोई स्पेशल प्राइस है उस पर आपने ऑर्डर एक्सेप्ट करना नहीं करना। ऑब्टेन एडिशनल बिजनेस बाय मेकिंग अ मेजर प्राइस कंसेशन, अब यहां पे क्या कर रहे हैं? मेजर प्राइस कंसेशन कर रहे हैं टू अ स्पेसिफिक ऑर्डर। अब यहां पे देखिए अगर ये प्राइस कंसेशन होगी, रेवेन्यू डिक्रीज करेगा, प्रॉफिट भी डिक्रीज करेगा, बट ड्यू टू इंक्रीज सेल, इंक्रीज सेल क्या ओवरऑल प्रॉफिट इंक्रीज कर सकता है। दैट व्हाट वी आर गोइंग टू सी द कि वाकई में ये डिसीजन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। So that means due to increase in profit sale, we are going to see that obtain additional business by making a major price concession to a specific customer. Assume that the sales of a product in other market are not affected by special order. कि suppose ये सारा जो नीचे जो सब पूरा का पूरी जो कहानी लिखी थी ये नहीं वर्क करती in case of additional special orders. Assume that the company is not operating at full capacity, और कंपनी ना ही full capacity पे ऑपरेट करी, तो तब भी ये कहानी नहीं चलेगी। तो तब क्या होना है? तो क्या एक्सेप्ट करें क्या ऑर्डर ऑन स्पेशल प्राइस के ना करें? तो दैट वी आर गोइंग टू सी कि हम लोग क्या इस डिसीजन को लेके चलें या ना चलें। For example, now let's see example. Customer offers to buy a special order of 2000. Now here it is 2000 at $11 per unit. कितने पे? $11 per unit. No effect on normal sale. किस पे? Normal sale पे कोई effect नहीं है. No effect on plant capacity. Currently operating 80% पे रहेगा. Currently variable cost 8 per unit है. Current fixed manufacturing cost वो भी इतनी है. Normal selling price $20 है. Based strictly on total cost $12 per unit. कितनी आ रही है ये? $12 per unit. 8 plus 4. तो रिजेक्ट ऑफर एज कॉस्ट एक्सीड्स द सेलिंग प्राइस। क्या हो जाएगा? कॉस्ट एक्सीड कर देगी सेलिंग प्राइस से। कैसे आएगा? और से देखें तो यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे 4 ये आ गई है, 4 यहां पे आ रही है हमारे पास, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 8। तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी है? 8 plus 4 12 आ गई है। और नई प्राइस क्या थी? स्पेशल प्राइस दैट इज 11। तो 11 यहाँ पे आपकी रेवेन्यू आ रहा है, 12 आपका जो है वो कॉस्ट आ रही है। तो दैट मीन्स कि जो ये तो उल्टा लॉस हो रहा है। तो दैट मीन्स वी डेफिनेटली रिजेक्ट इट, हम इसे रिजेक्ट कर देंगे और रिजेक्ट करके उसे कहेंगे दैट द कॉस्ट एक्सीड्स द सेलिंग प्राइस बाय $1। $1 से ज्यादा कॉस्ट हो गई है रेवेन्यू से। रेवेन्यू इज 11, कॉस्ट इज 12, तो $1 का तो वैसे ही घाटा हो रहा है हमें। सो दैट मीन्स वी रिजेक्ट दिस ऑफर। एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं इसी में। फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट चेंज सिंस विद इन द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, दस फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट रेलेवेंट। वो कहते हैं जो फिक्स्ड कॉस्ट के $4 थे वो कहते हैं हम फिक्स्ड कॉस्ट नॉट रेलेवेंट बिकॉज वो चेंज नहीं हो रही। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड एक्सपेक्टेड रेवेन्यू चेंजेस दस द बोथ रेलेवेंट डिसीजन। अब क्या हो रहा है? रिजेक्ट ऑर्डर एट द रेवेन्यू कितना आ रहा है? 22,000 हो रहा है, यहाँ पे कोई रेवेन्यू नहीं हो रहा था, कॉस्ट 0 है, यहाँ पे कितनी हो रही है? इतनी हो रही है। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर हम रिजेक्ट करते हैं ऑर्डर तो 0 है, और यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे 6,000। तो ओवरऑल हमारे पास ये कंडीशन आ रही है इन ओवरऑल केस ऑफ दिस एग्जांपल कि यहाँ पे आ रही है, हमने कहा फिक्स्ड कॉस्ट रेलेवेंट नहीं है लेकिन रेवेन्यू कितना हो रहा है। तो जब मैंने रेवेन्यू देखा तो उसमें रेवेन्यू निकला 2000 into 11 दैट इज 22,000, 16,000 इज योर कॉस्ट एंड टोटल नेट इनकम इज योर ओवरऑल दिस वन। अब यहाँ पे वो किस तरह आता है, क्या नाम है, कॉस्ट किस तरह आई है? वो आई है 8,008 मल्टीप्लाई बाय 2000, तो 16,000 आ गई। हमने कह दिया फिक्स कॉस्ट रेलेवेंट नहीं है, तो तब हमारे पास ये आंसर कुछ
समझ में या क्लियर हो रहा है? डिसीजन एक्सेप्ट ऑफर इंक्रीज बाय इनकम बाय 6000, कितनी इंक्रीज हो गई इनकम बाय $6000, इतनी अमाउंट से इनकम जो है वो आपकी इंक्रीज हो गई, सो वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट इफ द फिक्स्ड कॉस्ट इज इररेलेवेंट, जब फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाए, इररेलेवेंट हो जाए। मेक और बाय, सेकेंड वन, मेक और बाय में क्या होता है, मस्ट डिसाइड वेदर टू मेक अ कंपोनेंट पार्ट और बाय फ्रॉम अदर, कि क्या हमें कंपोनेंट बाय करना चाहिए या उसे परचेज करना चाहिए। एग्जांपल, द फॉलोइंग कॉस्ट आर देयर, यू कैन सी दैट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड्स, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट पर यूनिट इतनी आ रही है। So that is the following cost incurred to make 25,000 switches. यहाँ ये make की decision. Alternatively, switches can be purchased at $8, switch $2000 की. Eliminate all variable cost for making switches. Eliminate $10,000 fixed and however 50,000 remains. यानी वो कह रहा है कि अल्टरनेटिव स्विचेस हम लोग क्या करेंगे, परचेज कर लें $8 पर स्विच पे 200,000 के। एलिमिनेट्स ऑल कॉस्ट ऑफ मेकिंग स्विचेस, सारी एलिमिनेट हो जाएंगी। एलिमिनेट्स $10,000 ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, हाउएवर $50,000 रिमेन्स। सो दैट इज द होल कॉस्ट दैट वी हैव सीन दैट। फर्दर कंटिन्यू करते हैं इस एग्जांपल को। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज $1 हायर देन द परचेज प्राइस, तो क्योंकि $9 था ना प्रोसेसिंग का और परचेज 8 का आ रहा था, तो $1 हाई है। मस्ट एब्जॉर्ब एटलीस्ट 50,000 फिक्स्ड कॉस्ट, कितनी करनी है, 50,000 फिक्स्ड कॉस्ट को हमने एब्जॉर्ब कराना है। अब गौर से देखें तो मेक की ऑप्शन ये रही, बाय की ऑप्शन ये रही। डायरेक्ट मटेरियल कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इधर डायरेक्ट नहीं चाहिए, इधर डायरेक्ट लेबर भी है, इधर वेरिएबल ओवरहेड भी है, इधर फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने यहाँ पे, दैट इज 60,000, और यहाँ पे कितने आ गए जो 50,000 की एडिशनल रहने। परचेज प्राइस इसकी कोई नहीं, इसकी है, तो यहाँ पे देखें तो ये कितना पड़ रहा है हमारे पास 225, ये कितना पड़ रहा है 250। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट इसकी जो है बाय की हायर पड़ रही। डिसीजन कंटिन्यू टू मेक स्विचेस एंड एज परचेजिंग एड्स 25,000 एडिशनल कॉस्ट। परचेजिंग कितनी ला रही है एडिशनल कॉस्ट, दैट इज ऑफ 25,000। कितनी एडिशनल कॉस्ट, 25,000 एडिशनल कॉस्ट वो लेकर आ रही है। नाउ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट इज समथिंग डिफरेंट। क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है, किस तरह वर्क करती है, क्या चीज होती। The potential benefit that may be obtained from following an alternative course of action must be considered incremental analysis. For example, आप कहते हो कि मेरे पास 1 लाख रुपए, आप कहते हो इसे मैं 2 तरीके, या तो बिजनेस में लगा दूं या बैंक में जमा करा दूं, 2 ही ऑप्शन होती है ना। अगर मैं बैंक में जमा कराऊंगा मुझे 10% इंटरेस्ट मिलेगा, अगर मैं इसे बिजनेस में जमा कराता हूं तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा ये भी पता नहीं है, यही बात है ना। अब मैं कहता हूं कि यार अगर मैंने सपोज डिसीजन किया कि मैं इसे बिजनेस में लगाता हूं तो मैं कम से कम कितना रिटर्न मांगूंगा, वो मैं एक रिटर्न मांगूंगा कि कम से कम मुझे एटलीस्ट 10% रिटर्न तो मिले बिजनेस के। तो ये मेरा 10% क्या कहलाएगा, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या कहलाएगा ये मेरा, कि ये चीज कहलाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि दैट व्हाट वी नोन एज कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। कि दैट मींस टू से कि 10% जो से मिल सकता था उस 100,000 पे, कि यानी अगर वो इस बिजनेस पे ना लगाता और बैंक में रखता तो उसे कितना रिटर्न डेफिनेट मिलना था, 10%। तो इसका मतलब है उसने बिजनेस में इसलिए लगाया कि उसे शायद 10% या 10% से ज्यादा उम्मीद है। तो इसका मतलब है बिजनेस के लिए उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो 10% या 10% से ज्यादा है, कि या तो वो कचा रहा है कम से कम वो बिजनेस पे 10% कमाए क्योंकि उसे कहीं और से 10% मिल रहा है, या 10% से ज्यादा कमाए। सो दैट इज व्हाट वी नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑलवेज बीन परसेंटेज, दैट इज लाइक 10%। तो इसीलिए कह रहा है कि दैट द पोटेंशियल बेनिफिट दैट मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग एन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जब बैंक है ये हमारा क्या कहलाएगा, दैट इज आवर अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ये हमारा क्या कहलाएगा, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। फर्दर एग्जांपल देखिए, assume that buying a switching, अब वही वाली एग्जांपल लेके जा रहे हैं फॉर मेक और बाइंग a switching allows to use the and release capacity to be earned $8,000 for additional income। यानी कि अगर बाय करेगा स्विचिंग तो क्या हुआ, उसे allow the company to use the released capacity to earn $28,000 in additional। The $28,000 lost income is the additional cost of making the purchase। यानी इतनी इनकम लॉस हो जाएगी बिकॉज ऑफ एडिशनल यूजेज जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से। तो टोटल एनुअल कॉस्ट कितनी आ रही, दिस मच, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने वापस एड अप कर दी जो से पड़ रही थी मेक की, जो हम लोगों ने पैसा रोका हुआ था उस पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आ रही है 28,000। तो वो हमने ऐड की तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है।
क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो इसका मतलब है नेट इंक्रीज कितना आया, दैट इज ऑफ $3,000। कितना इंक्रीज आ रहा है, $3,000। डिसीजन बाय आ स्विचेस एज कंपनी एज 3,000 बेटर ऑफ, यानी इस केस में बाय कर लेंगे स्विचेस को एज द कंपनी इज बेटर ऑफ विद $3,000 के $3,000 का उसे बेनिफिट हो रहा है। Now there is a review question. In make or buy decision, relevant costs are manufacturing costs that will be saved, the purchase price of the unit and the opportunity costs. तो यानी और से देखें तो सारे ही आ रहे हैं इसके अंदर, तो that means C, D. ये भी इसके अंदर इंक्लूड है, ये भी है, और ये तीनों चीजें इसके लिए इंपॉर्टेंट है टू मेक दिस वन। तो इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी होती है इसके अंदर, परचेज प्राइस भी होती है, प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है जो इसके अंदर लाई करती है, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा एनालिसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो दैट मीन्स टू से कि दैट इज रिक्वायर्ड। इसी के साथ ही हम कहते हैं कि दैट एक्चुअली वर्क्स, कि यही चीजें होती हैं जो साथ लेके चल रही हैं। नाउ अकाउंटिंग अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, these will have mile before installation। अब यहाँ पे क्या है, गौर से देखें कि यहाँ पे अब आ रहा है, जर्मनी में आ रहा है, वो कह रहे हैं कंसिडर अ बाय डिसीजन फेस्ड बाय a superior industry international, a big aluminum wheel maker in Valley Surfer, California. For years, President Steve Bedick had ignored the possibility of Chinese manufacturing. Then Boric started getting a blunt message from a General Motors and Ford, with the whom Superior does 85% of business, match the prices of a Chinese wheel supplier. Both automakers said separately that if the Superior could not agree to the lower prices, they would directly go to the Chinese manufacturer to turn to the other North American wheel makers. Stories like this repeated in the various industries illustrate why manufacturers engage in overseas offshoring, outsourcing. For example, compare the relative labor cost in major auto producing nations in dollar per hour to see why incremental analysis often leads to an outsourcing production to China, to countries like China. So that means to say कि ये इस तरह how their countries are going to account for their business to expand, कि उन्होंने overseas outsourcing क्यों कर दी है, उससे फायदा होता है, और वो सारी outsourcing करते हैं because of cheap labor, cheap resources। तो तभी यहाँ पे आ रही, तो यहाँ पे गौर से देखें तो ये पूरा आया हुआ है कि कितनी कितनी उन्होंने outsourcing की हुई है या चीप लेबर के लिए हम मूव कर गए हैं। सेल और प्रोसेस फर्दर, कि whether we should sell something or process something, may have option to sell the product at a given production or process further and sell it at the higher। यानी कि या तो जैसी प्रोडक्ट है वैसी भेज दो, या थोड़ा सा और प्रोसेस करके फिर भेजो। तो दैट मीन्स आइदर टू सेल इट और प्रोसेस इट, जस्ट लाइक ए गंदम। एक तो किसान ये गंदम वही भेज, दैट मीन्स सेल, और प्रोसेस फर्दर, कि या तो वो इस पे क्या नाम है प्रोसेस करे, इसका आटा बनाए और तब सेल करे एट अ हायर प्राइस। क्या करे वो, एट अ हायर प्राइस से फर्दर सेल करे। डिसीजन रूल, प्रोसेस फर्दर एज लॉन्ग एज द इंक्रीमेंटल रेवेन्यू फ्रॉम सच प्रोसेस एक्सीड्स द इंक्रीमेंटल प्रोसेसिंग कॉस्ट। प्रोसेस फर्दर एज लॉन्ग एज द इंक्रीमेंटल रेवेन्यू फ्रॉम सच प्रोसेसिंग exceeds the incremental processing cost. Now that's important thing, you can see that here it is, process further as long as incremental revenue from such processing, process further तब तक इसे प्रोसेस करें जब तक इसका इंक्रीमेंटल रेवेन्यू जो है फ्रॉम प्रोसेसिंग एक्सीड्स द इंक्रीमेंटल प्रोसेसिंग कॉस्ट, की जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू जो मिल रहे हैं दैट शुड बी मोर देन इंक्रीमेंटल कॉस्ट, उसे इंक्रीमेंटल कॉस्ट से ज्यादा होना जरूरी है, कि दैट वुड बी मोर देन इंक्रीमेंटल कॉस्ट, कि जितनी भी कॉस्ट आएगी उससे ज्यादा होना जरूरी है। नाउ सेल और प्रोसेस फर्दर लेके चलते हैं। एग्जांपल देखिएगा, कॉस्ट टू मैन्युफैक्चरिंग वन अनफिनिश्ड टेबल, डायरेक्ट मटेरियल $15, डायरेक्ट लेबर $10, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग $6, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग $4, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट 35 आ रही है। सेलिंग प्राइस ऑफ अनफिनिश्ड यूनिट्स इज $50, यूज्ड कैपेसिटी यूज्ड टू फिनिश द टेबल टू सेल इज $60 पर टेबल, यानी कि जब वो फिनिश करके बाद टेबल बेचेंगे तो दैट इज $60। रेलेवेंट यूनिट कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग टेबल, direct material increase $2, direct labor increase for $4, variable 2.40, 60% of labor, no fixed overheads, कोई fixed overheads नहीं होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द एग्जांपल, गौर से देखिएगा सेल्स पर यूनिट, वहां पे 50 और 60 अलग कर दिए,
कि प्रोसेस का सेल करेंगे तो इतने आएगा, प्रोसेस फर्दर में 60 का हो जाएगा। कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल इतना आ रहा है, डायरेक्ट लेबर इतना आ रहा है, 6 इतना आ रहा है, 4 इतना आ रहा है और टोटल इतना आ रहा है। अगर हम लोग उस डायरेक्ट मटेरियल को हम लोग प्रोसेस फर्दर करेंगे तो कितना आएगा, 17, 14 दिस मच आ रही है। नेट इनकम इसमें कितनी आ रही है, दैट इज 15 और यहाँ कितनी आ रही है, दैट इज 16.6। तो यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल इनकम इंक्रीज कितना आ रहा है, $1.60, यानी इतनी हमारे पास नेट इनकम इंक्रीज कर जाएगी पर टेबल, बिकॉज वी हैव स्टडीड कि यहाँ पे इतना इतना चेंज आ रहा है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास नेट इनकम देखें $10 पहले में सेल ज्यादा है, देन $2, $4, $2.0, देन 0, then 8.40. So we have net income per unit that is 1.60. Decision to process further. क्यों process further कर रहे हैं? Because we are earning income. हम income earn कर रहे हैं. Because incremental revenue $10 exceeds the incremental processing cost of 8.40. अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ये total cost कितनी आ रही है, 8.40 और यहाँ selling 10 आ रही है। तो इसका मतलब है we should process further. हमें यहाँ पे इसे प्रोसेस फर्दर करना चाहिए। नाउ दैट इज हाउ वी आर गोइंग फॉर द एनालिसिस ऑफ अ सेल और प्रोसेस फर्दर, या जिसे कहते हैं इंक्रीमेंटल एनालिसिस। दैट इज ऑल व्हाट वी नोन एज इंक्रीमेंटल एनालिसिस। रिटेन रिप्लेस, सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं हम, रिटेन करें या रिप्लेस करें। दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या हमें रिटेन करना चाहिए या चीजों को रिप्लेस करना चाहिए। Now that we are going to see that example, assessment of replacement of factory machine, old machine, new machine, book value 40,000, cost 120,000, remaining useful life 4 years, remaining useful life 4 years, salvage value 0 and both case 0. Variable manufacturing cost decreases from 160,000 to 125,000 if new machine is purchased, यानी वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। यहाँ पे देखें 160,000 से 125,000 हो जाएगी, यानी इतना डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा कि जैसे हम कहते हैं वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिक्रीजेस फ्रॉम 160,000 टू 125,000 इफ न्यू मशीन्स परचेज्ड। नाउ वेरिएबल कॉस्ट किस तरह आ रही है वो देख लें। यहाँ पे रिटेन इक्विपमेंट 640,000 की आ रही है, रिप्लेस इक्विपमेंट में 500,000 की आ रही है, न्यू मशीन कितने की आ रही है, 120 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे हमने ओवरऑल निकाला तो हमारे पास कितना टोटल में चेंज आ रहा है, दैट इज 20,000। आप अगर पिछली स्लाइड में देखें तो आपको यहाँ पे देखें हर चीज का ऊपर दिया हुआ है कि कितनी कितनी कॉस्ट पड़ रही है, 160, 120, एवरीथिंग इज बीइंग गिवन कि टोटल बुक वैल्यू कितनी पड़ रही है, एवरीथिंग इज देयर। तो हमने वहीं से एनालिसिस लिया तो दैट वी हैव अ टोटल डिफरेंस ऑफ 20,000, टोटल डिफरेंस ऑफ 20,000। डिसीजन रिप्लेस द इक्विपमेंट, क्यों रिप्लेस क्यों करेंगे, बिकॉज रिप्लेस हैज बेनिफिट। कितना आ रहा है कॉस्ट का बेनिफिट आ रहा है। यहाँ पे 20,000 ज्यादा कॉस्ट पड़ रही है या 20,000 कम लॉस कॉस्ट पड़ रही है, तो दैट मीन्स इट इज लोअर, इट इज हायर। तो रिप्लेस द लोअर वेरिएबल कॉस्ट ड्यू टू रिप्लेसमेंट मोर देन ऑफसेट द कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विपमेंट। तो दैट मीन्स रिप्लेस, यानी कि जो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट रिडक्शन आ रही है दैट इज मच बेनिफिशियल एज कंपेयर टू द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ रिटेंशन। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू रिप्लेस इट विद द न्यू वन। Now there are certain additional considerations that lies over there. The book value of old machine does not affect the decision, यानी book value of old machine जो है वो does not affect the decision. Book value is a sunk cost, उसे क्या कहते हैं, हमेशा sunk cost कहते हैं। Cost which cannot be changed by further decision, वो cost जो further decision से change ना की जा सके। Sunk costs are not relevant in incremental analysis, कि sunk cost कभी भी relevant नहीं होती in case of incremental analysis. However, any trade in allowance or cash disposal value of an existing asset is relevant, यानी क्या क्या चीजें relevant है, ट्रेड इन अलाउंस रेलिवेंट है और कैश डिस्पोजल वैल्यू ये इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जिस्टिंग एसेट विच इज रेलिवेंट, जो भी एग्जिस्टिंग एसेट है और वो रेलिवेंट होगा। Here is a review question. The decision rule is in a sell or process further decision is process further as long as incremental revenue increase operating cost. ये याद रखना है, याद रखिएगा whenever you are doing a questions. One more thing I want to say regarding your questioning कि we have recommended the book for this course. We have recommended many books for this course. Try to get that book and start practicing the questions. आप जितनी questions की practicing करेंगे आपके लिए उतना बेहतर है और उतना अच्छा रहेगा आपके लिए practicing के through. So it's my suggestion कि जितने भी आपके पास end chapter के problems या exercise हैं, do use them
and do practice them. It would be beneficial not only for the understanding but also for your exam, and so also for your final, and also for your assignments and the quizzes. So it's better that you should practice the end chapter problems of this book, of whatever chapter we are covering or whatever topic we are covering. Maybe sometimes it's a combination of two books for covering a single topic. So just go through their your self study solution questions for the betterment of your own knowledge. So it's my suggestion to go through from the end chapter problems, कि जो भी end chapter end topic problems हैं उनको cover up करें. तो क्या आ रहे हैं यहाँ पे इंक्रीमेंटल प्रोसेस. कमिंग बैक टू द टॉपिक, द डिसीजन रूल इन अ सेल और प्रोसेस फर्दर डिसीजन. प्रोसेस फर्दर एज लॉन्ग एज इंक्रीमेंटल रेवेन्यू फ्रॉम प्रोसेसिंग एक्सीड्स इंक्रीमेंटल प्रोसेसिंग कॉस्ट. वेरिएबल प्रोसेसिंग कॉस्ट, फिक्स्ड प्रोसेसिंग कॉस्ट, नो करेक्ट आंसर इज गिवन. तो हम लोग कहेंगे इंक्रीमेंटल प्रोसेसिंग कॉस्ट. क्यों इंक्रीमेंटल प्रोसेसिंग कॉस्ट से उसको होना चाहिए, यानी इनका इंक्रीमेंटल रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन इंक्रीमेंटल प्रोसेसिंग कॉस्ट. दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग कि यानी इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए इंक्रीमेंटल प्रोसेसिंग कॉस्ट से. नाउ की फोकस ऑन रेलेवेंट कॉस्ट. की फोकस कहां एग्जिस्ट करता है रेलेवेंट कॉस्ट का. कंसिडर इफेक्ट ऑन रेलेवेंट रिलेटेड प्रोडक्ट लाइन. कि हम लोग क्या करेंगे, इफेक्ट ऑन रिलेटेड प्रोडक्ट लाइन कैसे रहता है. फिक्स्ड कॉस्ट एलोकेटेड टू द प्रॉफिटेबल सेगमेंट मस्ट बी अब्सॉर्ब्ड बाय अदर सेगमेंट. ये देखें, ये इंपॉर्टेंट चीज है, दैट यू शुड नोट इट डाउन. That fixed cost allocated to unprofitable segment. क्या होगा, fixed cost जो unprofitable segment को allocate हुई है must be absorbed by other segments. कि वो जो fixed cost है वो कहाँ absorb होनी चाहिए, other segments में जो profitable है उधर पे होना चाहिए. यानी कि हमें अपनी जो non profitable segment है उसको कहीं और पे utilize करना चाहिए. Net income may decrease when an unprofitable segment is eliminated. पॉसिबल है कि नेट इनकम इंक्रीज कर जाएगी जब अनप्रॉफिटेबल सेगमेंट को आप खत्म करेंगे. डिसीजन रूल, रिटेन द सेगमेंट अनलेस फिक्स्ड कॉस्ट एलिमिनेट एंड एक्सीड्स द कंट्रीब्यूशन मार्जिन. दैट्स द इंपॉर्टेंट डिसीजन रूल. यू कैन सी दैट बिकॉज if you are going to see that retain the segment unless fixed cost eliminated exceeds द कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस. यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा हो जितना कि उससे कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस हुए, यानी फिक्स्ड कॉस्ट जो एलिमिनेट हो रही है दैट वुड बी मोर देन एक्सीड्स द कंट्रीब्यूशन मार्जिन, वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन से ज्यादा हो, तभी आपके पास ये डिसीजन होना चाहिए फॉर एलिमिनेट द अनप्रॉफिटेबल सेगमेंट. तभी हमारे पास अनप्रॉफिटेबल सेगमेंट एलिमिनेट हो सकता है. Now let's see an example. So we have a clear idea about the unprofitable segment. Martina company manufacture 3 model of tennis racket. Profitable lines, Pro and Master. Unprofitable Champ. Condensed income statement देखें, यहाँ पे तीनों की बनाई हुई है. Pro की अलग है, Master की अलग है, Champ की अलग है. Sales देखें दोनों की हैं. Variable cost 90 है, Fixed expense 30 है. ये वाला हमारे पास क्या चल रहा है, Unprofitable चल रहा है. यहाँ पे देखें ये भी प्रॉफिटेबल है, मास्टर भी प्रॉफिटेबल है. शुड चैम्प बी एलिमिनेटेड. क्या चैम्प एलिमिनेट होना चाहिए, इसके लिए हमने टेस्ट करेंगे. नाउ लेट्स सी फर्दर. इफ द चैम्प इज एलिमिनेटेड, एलोकेट द 30,000 फिक्स्ड कॉस्ट. कितनी 30,000 फिक्स्ड कॉस्ट इन 2/3 टू प्रो, 1/3 टू मास्टर. रिवाइज इनकम स्टेटमेंट क्या होगी और से देखें. प्रो क्या हो गया, दैट इज फिक्स्ड एक्सपेंसेस, इसमें एक्साइड कर गए 130 हो गया, दैट इज 300 हो गया, दैट इज नाउ 210. टोटल इनकम डिक्रीज बाय व्हाट, 210. इतनी से इनकम आपकी क्या हो गई है, वो 10,000 से डिक्रीज कर गई. 220 से कहां चली गई आपकी इनकम, 210 से. सो व्हाट डज दैट मीन्स के इनकम हैज बीन रिड्यूस्ड. और जब इनकम रिड्यूस कर गई तो दैट मीन्स इंक्रीमेंटल एनालिसिस ऑफ चैन प्रोवाइड द सेम रिजल्ट. डू नॉट एलिमिनेट द चैम्प. चैम्प एलिमिनेट करने से $10,000 की इनकम जा रही है, दैट इज गोइंग टू बी एलिमिनेटेड. के वो जो इनकम है वो एलिमिनेट होती जा रही है विद द टाइम, कि जितनी भी आ रही है वो, सो वी शुडंट एलिमिनेट द चैम्प. चैम्प को एलिमिनेट करने से 10,000 का लॉस है. डिक्रीज इन नेट इनकम इज ड्यू टू द चैम्प्स कंट्रीब्यूशन मार्जिन $10,000. वो कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन था, $10,000. दैट विल नॉट बी रियलाइज्ड इफ सेगमेंट इज बीइंग डिसकंटिन्यूड. जो रियलाइज नहीं होगा अगर हम लोग सेगमेंट को डिसकंटिन्यू करते. नाउ देयर इज अ रिव्यू क्वेश्चन. If an unprofitable segment is eliminated, net income will always increase. Variable expenses of eliminated segment will have to be absorbed by other segment. Fixed expenses allocated to the eliminated segment will have to be absorbed by other segments. अब देखें यहाँ पे अब आपको खुद ही नजर आ रहा है कि that C is something better. So net income will always decrease. तो answer would be C, because ये हमने already study किया है कि that it should be there.
दैट दिस शुड बी क्लियर, कि यहाँ पे ये होना चाहिए कि जो फिक्स एक्सपेंसेस दैट शुड बी एब्जॉर्ब्ड बाय अदर डिपार्टमेंट, कि जो भी हमारे पास फिक्स एक्सपेंसेस हैं वो अदर डिपार्टमेंट का पार्ट हो जाने चाहिए, यानी दैट शुड बी एब्जॉर्ब्ड बाय द अदर डिपार्टमेंट्स, ताकि हमारे पास एक क्लियर पिक्चर आए कि दैट दिस इज आवर फिक्स एक्सपेंस और इतनी हमारे पास ओवरऑल एक्सपेंसेस होने चाहिए। एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहे हैं। रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड। फ्लोर स्पेस फॉर रिटेल फर्म, यानी हमेशा इसकी लिमिटेड होती है। रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, hours, machine, capacity of manufacturing, these all things are limited. Management must decide which product to make and sell to maximize net income, यानी कि ये मैनेजमेंट का डिसीजन है कि कौन सी प्रोडक्ट बनाएं, कौन सी बेचें, ताकि हमारे पास नेट इनकम क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए। नेट इनकम शुड बी हायर, जिससे हमारे पास नेट इनकम ज्यादा आना शुरू हो जाए, हायर आना शुरू हो जाए। जब वो नेट इनकम हायर आएगी तो दैट इज ऑटोमेटिकली बी बेनिफिशियल फॉर यू, कि ये आपके लिए ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, बेनिफिशियल हो जाएंगे। There is an example for the limited resources, so let's see. Collins Company manufactures deluxe and standard pen and a pencil set, यानी क्या बनाते हैं, deluxe, standard pens and pencil set। Limited resources क्या है, 36,000 machine hours per month, इससे ज्यादा काम नहीं हो सकता, that is the limit, इससे ज्यादा ये काम नहीं हो सकता। डिलक्स सेट में कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कितना है, 8,008, स्टैंडर्ड पे 6 है, मशीन आवर्स 0.4 चाहिए, इसे 0.2 चाहिए। डिलक्स सेट हैज हायर कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज $8 एंड स्टैंडर्ड सेट टेक फ्यूर मशीन आवर्स पर यूनिट, यानी कि स्टैंडर्ड सेट क्या होते हैं, थोड़े मशीन आवर ले रहे होते हैं पर यूनिट के मशीन आवर्स क्या होते हैं, वो थोड़े होते हैं। So, example, must compute the contribution margin per unit for the limited resources, के पहले हमें पता लग जाए contribution margin for limited resources कितना है, तो ये तो हमें पता है $8, $6, $4, $this। contribution margin क्या है, A divided by B, यही होता था ना कि contribution margin divided by machine hours, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, दैट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट ऑफ लिमिटेड रिसोर्स एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट ऑफ दिस रिसोर्सेज। तो डिलक्स सेट एंड स्टैंडर्ड सेट, तो स्टैंडर्ड सेट हैव हायर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। स्टैंडर्ड सेट हैव हायर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट देन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी कि हायर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज है इन स्टैंडर्ड सेट। डिसीजन शिफ्ट सेल्स मिक्स टू स्टैंडर्ड सेट, क्यों जाएंगे, बिकॉज कंट्रीब्यूशन मार्जिन हायर आ रहा है, तो हम किसकी तरफ मूव कर जाएंगे, वी मूव टुवर्ड्स द स्टैंडर्ड सेट्स, किसकी तरफ मूव कर जाएंगे, स्टैंडर्ड सेट्स की, और इंक्रीज कर जाएंगे मशीन कैपेसिटी की, ओवरऑल मशीन कैपेसिटी भी इंक्रीज कर देंगे। तो शिफ्ट सेल्स मिक्स टू द स्टैंडर्ड सेट्स और इंक्रीज मशीन कैपेसिटी, और क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे मशीन कैपेसिटी पे। Now continued. Alternative, increase machine capacity from 3600 to 4200 machine hours। कितना इंक्रीज हो गई कैपेसिटी, नाउ रिसोर्सेज हैव चेंज्ड। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, रिसोर्सेज क्या हो गई हैं, चेंज हो गई, तो इसका मतलब है वी हैव टू इंक्रीज आवर मशीन कैपेसिटी फ्रॉम 3600 hours to 4200 machine hours। प्रोड्यूस डिलक्स सेट और प्रोड्यूस दिस सेट, मशीन आवर्स कितने आ गए थे यहाँ पे, अब इंक्रीमेंटल में आ गए, कितना आ गया यहाँ पे इंक्रीमेंटल, 600, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 20 एंड 20। तो यहाँ पे जब हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट निकालना है तो A मल्टीप्लाई बाय B किया, तो दैट वी हैव 12,000 और दिस दैट इज नोन एज 18,000। तो दैट मींस टू मैक्सिमाइज नेट इनकम ऑल एडिशनल 600 आवर्स शुड बी यूज्ड टू प्रोड्यूस स्टैंडर्ड सेट। यहाँ पे भी किसमें लगाने देने चाहिए, स्टैंडर्ड सेट, बिकॉज इसका 18,000 ग्रेटर है 12,000 से, तो दैट्स व्हाई ऑल शुड बी पुट टू प्रोड्यूस द स्टैंडर्ड सेट, जितना भी है वो स्टैंडर्ड सेट को प्रोड्यूस करने में लगा देना है, ताकि हमें पता लगे कि वेयर द स्टैंडर्ड सेट विल बी प्रोड्यूस्ड। Now we are coming towards the capital budgeting. Capital budgeting is one of the techniques of you can say decision making. ये डिसीजन मेकिंग की एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग ओवरऑल डिसीजन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन इज बेस्ट नोन एज कैपिटल बजटिंग, यानी ये सिर्फ और सिर्फ किसको एड्रेस करता है,
कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को एड्रेस करता है। ओके, दैट इज व्हाट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, that is what we known as your capital expenditures की capital expenditures कितनी है। The amount of possible capital expenditure usually exceeds the fund available for such capital expenditure। जो भी amount of capital expenditure है वो normally exceed कर देता है जितने ही funds रखे होते हैं for capital expenditure के। Capital budgeting involve choosing among various projects to find the one that will maximize return on investment। यानी important thing क्या है, ये होना चाहिए कि हमने वेरियस अल्टरनेटिव में से वो अल्टरनेटिव चूज करना है जहां पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा मैक्सिमाइज हो रहा हो। क्या मैक्सिमाइज हो रहा हो? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही हमें गाइड करता है कि वेयर शुड वी गो, हमें कहां जाना चाहिए, किस तरफ लाई करना चाहिए। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज रिलेटेड टू कैपिटल बजटिंग। Evaluation process, many company follow a carefully prescribed process in capital budgeting। कुछ प्रोसेसेस होते हैं इसके अंदर, कौन कौन से? NPV कहलाता है, एक IRR भी होता है, एक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी कहलाता है इसके अंदर, और एक कहलाता है पे बैक पीरियड। दीज ऑल आर द प्रेस्क्राइब्ड प्रोसेसेस जिसके थ्रू हम लोग कैपिटल बजटिंग करते हैं। एटलीस्ट वंस अ ईयर प्रपोजल आर रिक्वेस्टेड फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट। क्या करते हैं हम? प्रपोजल रिक्वेस्ट करते हैं ईच डिपार्टमेंट में से। कैपिटल बजटिंग कमेटी स्क्रीन द प्रपोजल एंड सबमिट इट्स फाइंडिंग टू द ऑफिसर ऑफ द कंपनी। क्या करते हैं? सबमिट करते हैं फाइंडिंग्स टू द ऑफिसर ऑफ अ कंपनी। ऑफिसर सिलेक्ट प्रोजेक्ट एंड सबमिट लिस्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या करता है ऑफिसर? ऑफिसर सिलेक्ट करता है प्रोजेक्ट्स एंड सबमिट लिस्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर अप्रूवल। कि जो भी ऑफिसर है वो पहले प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेगा और सबमिट कर देगा लिस्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर अप्रूवल, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ताकि उसे अप्रूवल दे सकें जो भी होगा, तो ताकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे क्लियर कर सकेंगे कि दे शुड हैव टू गिव द अप्रूवल, के जो भी अप्रूवल उधर पे आएगी। Now there is a evaluation process. Provide management with the relevant data for capital budgeting decision। क्या करता है? प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को with the relevant data for capital budgeting decision। Requires familiarity with the quantitative techniques। यानी प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को with the relevant capital budgeting decision that requires familiarity with the quantitative technique। किसके साथ familiarity चाहिए? quantitative techniques। क्या आपको पता हो कि quantitative के साथ आपकी कितनी familiarity है? familiarity है। The most common techniques are annual rate of return, cash payback period, discounted cash flow। These are the three methods that are normally used। ये method है for capital budgeting। Now here is some evaluation process। These techniques will be illustrated using the following data of Tapan company। in investment कितनी हो रही है टोटल? 130। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यूजफुल लाइफ 10 years है। जीरो सैलवेज वैल्यू। एक्सपेक्टेड एनुअल रेवेन्यू कॉस्ट फॉर न्यू प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। क्या जो भी हमारे पास एनुअल रेवेन्यू आएगा वो कितना आ रहा है? दैट इज 200,000, जिसमें से हम सारी कॉस्ट माइनस कर रहे हैं। तो इनकम बिफोर टैक्स कितनी आ रही है? दैट इज 20,000। इनकम टैक्स एक्सपेंस 7,000, नेट इनकम 13,000। ये हमारे पास आ रही है। लेकिन ये हमारे पास नेट इनकम है, हमें चाहिए क्या? कैश फ्लो। इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? कैश फ्लो। तो क्या नेट इनकम और कैश फ्लो सेम होती है? नो, देयर इज अ डिफरेंस। हम इसके अंदर नॉन कैश आइटम वापस एड अप कर लेते हैं जिसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। सो टू गेट द कैश फ्लो, क्या निकालने के लिए? कैश फ्लो निकालने के लिए वी एड बैक द डेप्रिसिएशन, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम। क्या है वो? नॉन कैश आइटम है जिसे हम कहते हैं दैट व्हाट वी नोन एज डेप्रिसिएशन। Now the annual rate of return technique is based directly on the accounting data। वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही होती है? टोटल अकाउंटिंग डाटा। इंडिकेट्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैसे? एक्सपेक्टेड एनुअल नेट इनकम डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। यानी जितनी भी एनुअल नेट इनकम कितनी थी हमारे पास? 13,000 थी सपोज, और एवरेज इन्वेस्टमेंट थी 1,20,000। सो व्हाट वुड बी द रेट? दैट इज नोन एज एनुअल रेट ऑफ रिटर्न। The expected annual net income is from the projected income statement। यानी expected income कहां से मिलेगी? From the projected income statement, जो आपने next year की projected income statement बनाई है उसी को कहेंगे that is expected net income is from the projected income statement। कि ये चीज हमें बताएगी कि projected income statement में किस तरह ये lie कर रही है।
The average investment is derived from the following formula: original investment plus value at the end of useful life. That is what we known as, that is also being known as salvage value. Original investment divided by 2, तो इसे हम कहते हैं that is known as average investment. For Tappan company, the average investment is 130,000 plus 0 divided by 2, that is your average investment. 65,000 is your average investment, 65,000 US dollars. The expected rate of return for Tappan's company investment in a new equipment are, अब यहां पे देखें क्या किया उसने, the expected rate of return निकाल रहा है. नेट इनकम कितनी थी? इतनी थी. और ये हमारे पास क्या थी? एवरेज इन्वेस्टमेंट. तो 13,000 divided by 65,000, so we have 20% is your overall return on the expected rate of return. The decision, the project is acceptable if the rate of return is greater than the management minimum rate of return. अब यहाँ पे क्या है कि मैनेजमेंट का मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न क्या है? When choosing the among the several acceptable projects, the projects with the higher rate of return are generally more attractive. कहता है अगर ये रेट मैनेजमेंट के मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा है तो आप एक्सेप्ट करेंगे, और नॉर्मली ये हायर रेट होगा तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है मैनेजमेंट को, कि ताकि वो प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर ले. Then annual rate of return, how it works, how that could be calculated. तो सबसे पहले देखेंगे प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ एनुअल रेट ऑफ रिटर्न टेक्निक. सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन. एनुअल रेट ऑफ रिटर्न इज द मोस्ट सिंपल थिंग टू कैलकुलेट. मैनेजमेंट फेमिलियरिटी विद द अकाउंटिंग टर्म यूज्ड इन कैलकुलेशन, ये जरूरी है. मोर लिमिटेशंस, इट डज नॉट कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. दैट्स अ ड्रॉबैक दैट एग्जिस्ट ऑन एनुअल रेट ऑफ रिटर्न. कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को ये अकाउंट फॉर नहीं करती, कि कितना टाइम गुजर गया उसको आपने कैसे अकाउंट फॉर करना है. टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं है. देयर एग्जिस्ट अ टाइम वैल्यू ऑफ मनी. तो जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी एग्जिस्ट करती है तो यू शुड अकाउंट फॉर. तो दैट इज द लॉस के एनुअल रेट ऑफ रिटर्न कभी भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अकाउंट फॉर नहीं करता. दैट्स अ बिग ड्रॉबैक ऑफ अ annual rate of return. As noted in Appendix C, recognition of the time value of money can make a significant difference between present value and future value of investment. In time value of money requires a basic difference of overall things, यानी कि जितना भी आएगा कि present value और future value से values में काफी change आता है और difference generate करता है in making decision among the value of investment. Now we are moving towards the cash payback. Identifies the time period. इसका नाम, दूसरा नाम इसे यूं कह सकते हैं, that is also being known as payback period. दूसरा नाम इसका क्या है? payback period. Identify the time period required to recover the cost of investment. Time period required to recover the cost of investment. Uses the annual cash flow produced from investment. किसको यूज करता है? एनुअल कैश फ्लो को यूज करता है. that was used to produce from the investment. Net annual cash flow can be approximately by taking net income and adding. जो ये मैं बात कर रहा था कि उसमें हम क्या करते हैं, नॉन कैश आइटम जो डेप्रिसिएशन है उसको नेट इनकम में दोबारा ऐड करते हैं, तो वी हैव अ कैश इनफ्लो. मीन्स टू से नेट इनकम प्लस डेप्रिसिएशन, that leads to cash flow. क्या कहते हैं उसे? हम कैश फ्लो कहते हैं. The formula for computing cash payback is the cost of capital of investment divided by annual net annual cash flow. क्या कहेंगे उसे? net annual cash flow. तो that is known as cash payback period. यानी कि हम लोग टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेंगे और नेट एनुअल कैश फ्लो से उसे डिवाइड कर देंगे. तो जितने साल में वो रिकवर हो रही होगी, दैट इज बीइंग आवर आंसर. सपोज आप कहते हो इनिशियल इन्वेस्टमेंट मैंने 1,20,000 की थी और जो हमें नेट एनुअल कैश फ्लो आ रहा था वो दैट इज ऑफ 10,000 आ रहा था. तो इसका मतलब है 120,000 डिवाइड बाय 10,000, तो दैट लीड्स टू ओवरऑल 12. तो दैट मीन्स द ईयर्स आर 12. दैट इज अ पे बैक पीरियड. इसे क्या कहते हैं हम? पे बैक या कैश पेबैक कहते हैं.
Then further cash payback, let's see an example so you have a more clear idea regarding the cash payback कि cash payback कैसे वर्क करता है. Tapan company has a net cash inflow of $26,000. कितना कैश फ्लो है उसके पास? इनफ्लो $26,000, नेट इनकम 13,000, डेप्रिसिएशन 13,000. द कैश पेबैक किस तरह निकाल रहा है गौर से देखें. 130,000 डिवाइड बाय 26,000, तो द कैश पेबैक इज 5 years. ये तो आपको समझ आ रही है कि दैट इज द कैश पेबैक. Now further, Chen company has uneven net annual cash inflow. Now the cash payback period is determined when cumulative net cash flow equals to the cumulative investment. जब भी याद रखें net annual cash flows unequal आ रहे हैं तो we have to go for cumulative net cash flow. हमने किसकी तरफ जाना है? cumulative net cash flow की. तो अब यहाँ पे देखें 60,000 प्लस 90 किया 150 हो गया, प्लस 90 के 240 हो गया, प्लस 90 में 120 के 360 हो गया. नाउ 300 जो है वो 240 और 360 के बीच में लाई करता है, इन दोनों के बीच में. तो इसका मतलब है जो इसका पे बैक पीरियड दैट इज 3 to 4 years. किसके बीच में? ये 3 to 4 years के बीच में लाई करता है. तो आप करेंगे क्या? गौर से देखिएगा इसे. लोअर कौन सा? 240 है, दैट मीन्स 3 से तो ऊपर है, तो मैं 3 ऐसे ही लिख दूंगा. 3 ऐसे ही लिख दिया है मैंने. देन कितना डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में? इन दोनों के कैश फ्लो में 120 और 90. कितने का डिफरेंस है ये? 120 और 90 का. तो दैट मीन्स दैट इज अ डिफरेंस दैट एक्चुअली एग्जिस्ट. तो इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूं कि दैट 300,000 यानी 240,000 एंड 300,000 इनमें डिफरेंस आ रहा है. तो मैं क्या करूं, यहां पे 3 के बाद यहां पे एक ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा जिसमें लगाऊंगा 300,000 माइनस 240,000. अब ये 240,000 कहां से आया? हियर इट इज. और ये कहां से आया? हियर इट इज. और इसे मैं होल को डिवाइड करूंगा. किससे डिवाइड करूंगा? जिस ईयर में ये पूरा हो रहा है उसके कैश फ्लो. यानी हमें जो इसका डिफरेंस है वो किस ईयर में से चाहिए? 4th ईयर में से चाहिए ना. तो वी डिवाइड इट बाय 4th ईयर. किससे डिवाइड कर देंगे? 4th ईयर के कैश नेट कैश फ्लो से डिवाइड कर देंगे. सो दैट वी हैव आंसर विल बी दैट इज एंड दैट 0.5. सो वी हैव द कैश पेबैक ऑफ 3.5 years. क्या आ रहा है हमारे पास कैश पेबैक पीरियड? दैट इज 3.5 years. कितना आ रहा है? 3.5 years. Here is a review question. Which of the following is the incorrect about the annual rate of return technique? क्या कौन सा incorrect है? The calculation is simple. The accounting terms used are familiar. The timing of cash inflow are not considered. The time value of money is considered. तो obviously ये आपको understood है कि ये इसमें differences आ रहे होंगे. Because यही तो हमने कहा था कि drawback क्या है कि वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अकाउंट फॉर नहीं करता. कि जितनी भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी है दे डिडंट अकाउंट फॉर दैट टाइम वैल्यू ऑफ मनी. कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अकाउंट फॉर नहीं किया जाता इन दैट स्पेसिफिक केस. नाउ हियर इज अ मैनेजमेंट इनसाइट सो यू हैव अ मोर क्लियर आइडिया. Are you ready for the 50-inch screen? Building a new factory to produce 50-inch plus TV screen cost how much? 4 million at the time when price for the flat screen are tumbling. कि वो कम हो रही थी यानी कि वो चेंज हो रही थी. Now the maker of those joint liquid crystal display are wondering whether such investment is worth gamble. जरूरी है इसे बनाना. If the LCD maker decide to hold off an old building factory, price declines from widescreen TV could slow in 2 or 3 years as the production falls behind the added consumer demand. Expert also says that slowdown in factory building could also bring welcome relief for the industry by reducing its volatile profit swing. Since 2000, LCD makers have been non-stop constructing building new factories to produce latest generation of screens arriving every 18 months or so. Now with the 8th generation of screen, the cost to build new factory is higher than ever. 8th generation के लिए फैक्ट्री बिल्डिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हायर है. और कितनी लगेगी उसे? That is round about 3 billion to 4 billion US dollars. And this generation of factory is optimized from screens measuring 50 inches or more diagonally, which so far is a much smaller potential market than the target by the previous screen. Now that is the whole thing कि हमने कैसे करना है 50 इंच इन स्क्रीन. अब इसमें क्या ये डिसीजन करना है ना कि whether we should go for such capital investment or not, कि ये हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या फिलहाल इसे रहने देना चाहिए.
Now discounted cash flow. Discounted cash flow techniques generally recognize the best approach for making decision budgeting. याद रखिएगा ये सबसे ज्यादा discounted cash flow सबसे ज्यादा यूज होती है for capital budgeting decisions. Techniques consider both estimated total cash inflow, estimated total cash inflows को लेती है यानी जितने भी cash inflows हैं, and time value of money. दोनों problems को ये address करती है यानी ये दोनों को मिला के बनती है हमारे पास discounted cash flow. Two methods generally used with the discounted cash flow techniques. दो methods use होते हैं for discounted cash flow techniques. कौन कौन से? Net present value and IRR, internal rate of return. दो methods हैं जो normally discounted cash flows को use करते हुए decision करते हैं. One is known as present value and other one is known as discounted cash flow. क्या other one is known as internal rate of return. Net present value भी method में पहले आते हैं. Net present value method compares the present value of cash inflow. किसको measure करते हैं? Present value of cash inflow को measure करते हैं. And capital outlay required by investment. और साथ ही किसको भी evaluate करते हैं? Capital outlay कितना की है. The difference between two amounts is known as NPV. The interest rate used to discount the cash inflow requires minimum rate of return. जो भी इसे discount करता है rate उसे हम कहते हैं that is known as minimum rate of return. A proposal is acceptable when NPV is 0 or positive. Higher the NPV, the more attractive would be investment. और अगर नेगेटिव आ जाए तो आप प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दें, कहेंगे नहीं ये किसी काम का नहीं, ये हमें प्रॉफिट नहीं दे रहा, या तो इसकी एनपीवी 0 है या पॉजिटिव है, तो तब आपने इसे एक्सेप्ट करना है और जितनी हायर होगी उतना ही ये प्रोजेक्ट आपके लिए अट्रैक्टिव होगा. नाउ नेट प्रेजेंट वैल्यू डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया देखें. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लोज निकाले जिसमें से माइनस किए हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नेट प्रेजेंट वैल्यू. पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट करेंगे या 0 है तो एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज गो फॉर द रिजेक्शन ऑफ द प्रपोजल. कि प्रपोजल आप फौरन उसके बाद क्या कर देंगे? रिजेक्शन की तरफ ले जाएंगे, रिजेक्ट कर देंगे प्रपोजल आप उसके फौरन बाद. Now here in an example, so you have a more clear idea कि NPV कैसे होती है. Equal annual NPV, annual cash flow कितना है जी? 26,000 यूनिफॉर्म है. Calculation of present value of annual cash flow annuity at two different rates. कितने? Two different rates पे. यानी हमारे पास 12% भी है, 15% भी है. हमने कहा डिस्काउंट फैक्टर 10 पीरियड का ये निकला, मल्टीप्लाई किया इसे अलग अलग 26,000 के साथ, तो यहाँ 146 आ रहा है 12 के साथ, इसके साथ 130 आ रहा है. तो इसका मतलब है नाउ वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट कि अब यहाँ पे देखिए तो प्रेजेंट वैल्यू किसकी ज्यादा आ रही है? 12% की. तो अंडरस्टूड है कि ये आपको लगेगा कि शायद ये ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज हायर द हायर विल बी मोर अट्रैक्टिव. तो इक्वल एनुअल कैश फ्लोज कंटिन्यूड. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लोज यहाँ पे आपके पास थे और कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी? 30,000. माइनस किए तो दोनों में पॉजिटिव आ रही. हायर पॉजिटिव किसकी है? ऑब्वियसली इसकी है. तो एनपीवी पॉजिटिव वो डिस्काउंट एक्सेप्ट प्रपोज कैपिटल स्ट्रक्चर एट ईदर डिस्काउंट रेट. आप दोनों में से कोई भी चीज दोनों में से एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने जैसे पढ़ा था कि द हायर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट द मोर अट्रैक्टिव वुड बी द प्रोजेक्ट. तो आपके लिए डेफिनेटली ये 12% वाला प्रोजेक्ट ज्यादा अट्रैक्टिव होगा एज कंपेयर टू 15%, बिकॉज उसमें जो पॉजिटिव एनपीवी आई है वो बहुत थोड़ी है. दैट इज द वेरी लीस्ट अमाउंट, जो बहुत कहते हैं मिनिमम अमाउंट में आ रही है, दैट इज नोन एज योर ओवरऑल एनपीवी. तो इसीलिए आप 12% को ज्यादा सामने रखेंगे. अनइक्वल अमाउंट्स हो तो तब क्या करना है? अब यहां पे देखें तो अनइक्वल अमाउंट्स है. ये एनुअल नेट कैश फ्लोज आ रही हैं, 12% पे अलग कर ली, डिस्काउंट फैक्टर ये अलग कर ली. अब ये कैसे निकला है? 1/1 प्लस आई की पावर 1, और ये 1 कहां से आ रहा है? ये 1 यहां से आ रहा है. अगले में जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. उससे अगले में जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. सो दैट फाइंड्स द वैल्यू. ये सारे डिस्काउंट फैक्टर निकालिए, इससे भी और इससे भी. मल्टीप्लाइंग इट बारी बारी मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 1 into 2 कर रहे हैं, 1 into 3 कर रहे हैं. तो जब इन सारों को हमने एक साथ किया तो दैट मीन्स इट्स 12% और 15%. सो दैट मीन्स वी हैव टू आल्सो आइडेंटिफाई बोथ केसेस. तो बोथ केसेस में क्या हो रहा है गौर से देखें. तो प्रेजेंट वैल्यू 155 और 140,000 आ रही है. नाउ अब हमने क्या करना है? इसमें इंक्लूड करनी है कैपिटल इन्वेस्टमेंट. वो 130 थी, हमने माइनस किया तो आंसर 25 आ रहा है, यहाँ 10,000 आ रहा है. दोनों पॉजिटिव हैं. वी कुड एक्सेप्ट ईदर, बट हाईएस्ट एनपीवी किसकी है? वो इसकी है, 12% वाले की. So we go for the 12% of for the evaluation के 12% पे जाएंगे. NPV positive for both discount rate, except proposed capital expenditure at either, but we should go for higher NPV.
Now there is an internal rate of return method. Internal rate of return method finds the interest yield of potential investment. क्या करता है वो कि ये जो हमारे पास एडिशनल आ रही है एनपीवी, जो एडिशनल एनपीवी पॉजिटिव आ रही है हमारे पास, इसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बताना है. क्या करना है उसे? इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बताना है. IRR rate that will cause PV of a proposed equals to capital expenditure and a PV expected cash flow. यानी वो चीज जो कैपिटल एक्सपेंडिचर और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस को इक्वल कर दे, तो उसे हम कहते हैं IRR. टू स्टेप्स इन्वॉल्व. कंप्यूट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फैक्टर. क्या करेंगे हम? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फैक्टर कंप्यूट करेंगे. यूज द फैक्टर एंड द पीवी एनवर्टी फॉर टेबल टू फाइंड IRR. यानी उन दोनों को यूज करेंगे टू फाइंड IRR फ्रॉम द टेबल. टेबल को भी यूज साथ साथ हम करेंगे. Then further internal rate of return. Step 1 क्या है? The formula of computing IRR is the capital investment divided by net annual cash flow. तो that was internal rate of return factor आ जाएगा हमारे पास. तो हमने डिवाइड किया तो हमारे पास internal rate of return factor आ रहा है 5. Then continued example IRR. IRR is discount factor closest to IRR factor for that thing. That time period covered in annual cash flow. तो अब यहाँ पे present value और $1 का हमें टेबल दिया हुआ है. 5%, 10, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. तो क्लोजेस्ट फैक्टर के 5 को कौन सा है? तो 5 की क्लोजेस्ट कौन सा है? दैट इज 15%. दस IRR इज 15%. तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे दैट आर IRR इज 15%. यानी IRR की वैल्यू कितनी आ रही है? दैट इज राउंड अबाउट 15%. नाउ कंपेयर IRR टू द मैनेजमेंट रिक्वायर्ड मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न. किससे कंपेयर करना है उसे? मैनेजमेंट का जो भी रिक्वायर्ड मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है, अब हम उससे कंपेयर करेंगे. और डिसीजन क्या आना है? Accept the project when IRR is equal to or greater than the required rate of return. कि जब भी आपका IRR greater than या equal to required rate of return हो, यानी जितना भी required rate of return है वो सामने clear हो, यानी it should be the greater than the required rate of return or equal to required rate of return. Assuming a minimum rate of return of tuppence is 10%, प्रोजेक्ट एक्सेप्शनल सिंस IRR इज 15%. अब देखें उसका टप्पन का कितना था, उसका मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न 10%, लेकिन IRR ने कितना निकाला है? 15% निकाला है. दैट इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड रेट. क्या है वो? ग्रेटर देन रिक्वायर्ड रेट. IRR कैसे वर्क करता है? देखें, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कंपेयर्ड विद मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न. दोनों को हमने आपस में क्या करना है? कंपेयर. अगर मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न ग्रेटर एफ इक्वल टू ग्रे और ग्रेटर देन, यानी अगर इन दोनों में इक्वल है या ये वाला जो है वो ग्रेटर है, तो हम एक्सेप्ट करेंगे. अगर लेस देन है तो वी गोइंग टू रिजेक्ट इट. हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में वो रिजेक्ट कर देंगे. दैट इज हाउ द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वर्क्स. यानी ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की वर्किंग है. So that is how we are going to identify overall internal rate of return. कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को हमने कैसे देखना है और किस तरह परफॉर्म करना है. कंपैरिजन ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लोज. डिस्काउंटेड कैश फ्लोज को कंपैरिजन करना है. आइटम क्या ऑब्जेक्टिव? कंप्यूट नेट कैश फ्लो. इसमें क्या करते हैं हम? नेट कैश फ्लो. और कंप्यूट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. अब यहां तो कैश फ्लो पे कर रहे हैं, यहां परसेंटेज में कर रहे हैं, यहां परसेंटेज में. डिस्काउंट डिसीजन रूल. इफ नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू 0 और पॉजिटिव और एक्सेप्ट प्रपोजल, इफ नेगेटिव देन रिजेक्ट प्रपोजल. यहाँ क्या है? इफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सेप्ट प्रपोजल. इफ लेस देन मिनिमम रेट देन रिजेक्ट द प्रपोजल. दैट व्हाट वी आर डूइंग. यही तो हम कर रहे थे कि इन दोनों में यही चीजों का डिफरेंस एग्जिस्ट करता है. Here is the review question. The positive net present value means the project rate of return is less than the cutoff rate. The project rate of return exceeds the required rate of return. The project rate of return equals to the required rate of return and project is acceptable. Obviously, B जो है वो ज्यादा right लग रहा है, तो that means B is the right one because वो यही कह रहा है कि project rate of return higher हो जाता है. इसका मतलब यही होता है positive NPV का, कि that your project rate of return is higher than your required rate of return. So that's the end of our today's lecture. What we've studied today is the capital budgeting and how the incremental analysis are being formed, जिसके अंदर हमने देखा मेक और बाय का कैसे डिसीजन करना है, सेल और प्रोसेस का कैसे करना है. देन कैपिटल बजटिंग आई, जिसके अंदर हमने डिफरेंट डिसीजंस किए हैं, जिसमें हमने ये भी देखा एनपीवी क्या है, कैश पे बैक क्या है, IRR कैसे है, किस तरह क्या डिसीजन है, किस बेस पे डिसीजन करना है, क्या डिसीजन रूल होना चाहिए. वी हैव स्टडीड ईच एंड एवरी डिसीजन रूल दैट इज इन्वॉल्व्ड. So that's the end of the today's lecture number 31. So Allah Hafiz.